Okay, so class syllabus for TFCS is already completed in last class. Today is revision class for K-Maps, and on Thursday, what topic you want to study, you can tell me. I'll discuss that topic only on Thursday. And Thursday is revision, so primarily all your problems would be taken. So if you face any difficulty in any question or any topic, so that would be done on Friday. Sorry, Thursday in the upcoming class. Okay, so we will do K maps today. Okay. So have you studied something about K maps, or you have any doubt in a particular question of K map? Okay, let a few more other people join as well. Then we will start with K map. So any particular question that you face difficulty in? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I will start with the PPT of K map. Okay. So you can tell me in which where you face difficulty. Okay. Okay. So I'm sharing my screen. Okay. Now there are two types of representations for Boolean functions. First is SOAP and second is POS. So what is SOAP? An example of SOAP. There's no use of revision if you don't participate. So you have to tell me everything. Okay. Okay. So what is SOAP? SOAP expression. And sum of products. Sum of products. And example is AB plus BC, right? Plus CA, Yes. right? And what is POS? Product of sums. So what's example? A plus B into B plus C. Right. A plus B dot B plus C dot and so on. So this is POS. Now these functions can be represented and minimized using K maps, right? Now example. So this is a two variable K map. So how many cells? So if there are two variables, 2 to the power 2, that is 4 cells, right? So 4 cell K map is there. Okay. Next is if you have three variables A, B, and C. Okay. You have A, B, and C. So then for this you will be having 2 to the power 3. That is 8 cell K map. If you have four variables, you will be having 2 to the power 4. That is 16 cell K map. Okay. Now let's have a look at example for SOAP and POS. Now, are you able to understand this 0 0 0 0 how this 0 1 2 3 4 5 6 7 is coming? हम वो सेल्स के अंदर कैसे आया वो बता दो, वो नहीं आया। कैसे आया क्या चीज? हम सेल्स के अंदर कैसे मार्किंग करी थी, 0 अच्छा 1। मार्किंग कैसे करी थी? ओके चलो हम खुद बनाते हैं कि मैप सिंपल सा।
ठीक है, ए बी, अगर आपको फंक्शन गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं पीपीटी में से ही कोई, ये वाला ले लेते हैं, M035, ठीक है, M035, ठीक है। सो दिस इज, M का मतलब है सोप, और M का मतलब है सोप, ठीक है। अब इसमें 5 है, तो 5 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना, तो 101, 101 इज 5, 3 बिट, 3 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 035 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या रिमेनिंग टर्म्स आने चाहिए? देखो, दिस इज 3 इज 011 एंड 0 इज 000, राइट? तो नहीं, जो, बाइनरी अगर हम, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। हम्म ये 5 को हमने 101 लिखा है, ये हम्म, क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये बाइनरी। बिट्स, बिट्स में बाइनरी, हाँ, हाँ हाँ। 421, है ना, ऐसी होती है बाइनरी, बाइनरी नंबर्स, हम्म, ठीक है। अब देखते हैं इसका के मैप कैसे ड्रॉ करना है, पहले इरेज करते हैं इसको। 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी, दैट इज 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी लिखा होता और 035 होता, तो आप कितने सेल्स का के मैप बनाते? 2 to the power 4, यानी कि 2 to the power 4 यानी कि 16। 16 सेल्स का के मैप बनाते, ठीक है। अभी हमने कितने सेल्स का बनाया? 2 to the power 3, दैट इज 8 सेल्स का हमने के मैप बनाया, राइट? ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हो और यहाँ पे केवल 035 होता, ठीक है, तो डिपेंड करेगा फंक्शन में कितने वेरिएबल है। फंक्शन में ए बी सी डी है, तो हम 16 वेरिएबल के मैप में 035 रिप्रेजेंट करते। अभी हम 8 सेल्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज क्लियर? ओके। अब हम यहाँ पे लेट्स सी, अब बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, ए यहाँ पे मिलेगा, बी सी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका ये है जो हमें पीपीटी में मिला है, यहाँ पीपीटी में जो आपको गिवन है वो ऐसे है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी है। दिस इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग, ठीक है। अगर आप रीऑर्डरिंग करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा इन एनी केस, ठीक है। चलो हम दोनों में देख लेते हैं आंसर किस तरह से आता है। पहले इस वाले के मैप में देखते हैं, 0 1, और यहाँ पे 0 0, एक ही बिट चेंज होनी चाहिए, 0 0। अब यहाँ पे राइट बिट हम चेंज करेंगे, 0 1। अब यहाँ पे लेफ्ट बिट चेंज करेंगे, 1 1। अब यहाँ पे राइट बिट चेंज करेंगे, 1 0। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने ले लिए, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी सी, अभी दिस इज 0 0 0, ए बी सी 0 0 0, यहाँ पे 1 आ गया। नंबरिंग हमने कैसे लिखी थी वो देख लो, 0 0 0 इज 0, 0 0 1 इज 1, 0 1 1 इज, बताओ? 3, 2, 4, ठीक है, 4, यहाँ पे 5, 5, देन 1 1 1, 7 6, ठीक है। ये नंबरिंग समझ आ गई कैसे लिखी हुई है? यही स्लाइड में लिखी हुई है आपकी, ठीक है। 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7,
वो रीऑर्डर्ड वाला है, ये वाला है। अब इसमें यहाँ पे नंबरिंग बताओ। अब हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज अगेन 0 0 0। ये जो नंबरिंग काउंटिंग यहाँ पे रहेगी सेम रहेगी, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। अब 0 0 0 इज कितना होता है? 0 0 0 1 इज नहीं। अब हम इसे कैसे रीड करेंगे? क्योंकि हमारा फंक्शन इज ए बी सी, तो पहले हम ए बी रीड करेंगे देन सी। तो 0 1 0 इज 2 2, देन 1 1 0 इज 6 6, 1 0 0 इज 4 4। गुड। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 0 1 1, 0 1 1 3, 3 1 1 1 7 7, 1 0 1 5। ठीक है। तो आपकी स्लाइड्स में जो लिखा है वो ये वाला है, ए बी ऊपर है सी नीचे है। देखो, ए बी ऊपर है सी नीचे है, तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो वही नंबरिंग यहाँ पे यूज हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका आउटपुट और सेकंड वाले का आउटपुट सेम है। ठीक है। इट जस्ट रीऑर्डरिंग की है एबीसी की। ठीक है। आउटपुट सेम है। हम अब देख लेते हैं कैसे सेम आएगा। मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ। तो हम अब देखो, 0 कहाँ पे लिखेंगे इस वाले के मैप में? यहाँ पे। और 3 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। और 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, राइट। इस वाले के मैप में कहाँ लिखेंगे? 0 3 एंड 5। ठीक है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। yes ma'am अच्छा, अब इस वाले टर्म की वैल्यू मुझे बताओ क्या है? ये वाला टर्म कौन सा है? ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। क्योंकि हम सोप की बात कर रहे हैं ना, तो ए बार बी बार सी बार प्लस ये वाला टर्म कौन सा है? बताओ जल्दी से। ए बी बार A सी। B bar C ए बी बार सी प्लस ये वाला टर्म कौन सा है? ए बी A सी। bar B C ए बार बी सी। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इस वाले में देखो, इस वाले में सेम आ रहा है कि नहीं? ये वाला टर्म कौन सा है? हम्म? ये वाला टर्म कौन सा है? ए बार बी बार सी बार। ये वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म कौन सा है? 3 ए बार बी सी, है ना? प्लस और लास्ट टर्म कौन सा है? ये वाला A B bar C ए बी बार सी। ठीक है, गुड। यही एक्सप्रेशन आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल्स नहीं बन रहे, इसमें ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो यही आपका फाइनल मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, और दोनों से देख लो आंसर सेम है ना? आंसर सेम आएगा दोनों से। तो हम रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करना आता है? अगर यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता, सपोज
Okay, so this was 1, this was 1, this was 1, this was 1 and this was 1. ये नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा के मैप 8 सेल्स का है, ठीक है। तो 8 सेल्स का कोई इसमें बन नहीं पा रहा है, 8 सेल का हमें स्क्वायर बॉक्सेस बनाने होते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 2 टू द पावर जो मैक्सिमम बन सकता है दैट इज 2 टू द पावर 3 बन सकता है, वो जो कि 8 सेल्स का स्क्वायर बन सकता है। इसमें स्क्वायर नहीं बन पाएगा तो हम स्क्वायर नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 सेल्स का ग्रुपिंग हो पा रही है कि नहीं। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इसमें हो पाएगी वो 4 सेल्स की ग्रुपिंग हो पाएगी, है ना। तो अब हम इसमें 4 सेल्स की ग्रुपिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, बताओ। हो पा रही है, यस मैम। ये वाला Yes, और ma'am. ये वाला, है ना। तो सबसे पहले हमने 4 सेल्स की ग्रुपिंग देख ली। अब इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, ए तो कॉमन है ही नहीं, 0 1 0 1, ए तो कॉमन है ही नहीं। बी सी और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, बी बार सी बार और बी सी बार में से क्या कॉमन आ रहा है, सी बार। सी बार कॉमन आ रहा है। सो आंसर इज सी बार, राइट। प्लस अभी ये भी तो रह गया। अब ये जो रह गया इसे हम सिंगल नहीं करेंगे, इसे हम मैक्सिमम 2 की हो सकती है ना। तो हम इसे डबल की ग्रुपिंग करके यहाँ पे लिख देंगे। आंसर क्या आएगा इसका, इसका क्या आएगा टर्म बताओ, ए बार बी बार। बी बार, राइट। सो फाइनल मिनिमाइज एक्सप्रेशन इज दिस, सी बार प्लस ए बार बी बार। क्लियर है ये सबको। क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. अब तो के मैप में कोई डाउट होगा नहीं। ये तो हमने बनाया था सोप का, चलो एक पोस्ट का भी बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारा सोप। लेट्स मेक अनदर के मैप फॉर पोस्ट। अच्छा, जो m होता है, m यानी सोप, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट f कॉम्प्लीमेंट abc इज इक्वल्स टू बताओ, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। फंक्शन के अंदर 3 टर्म्स हैं, 0 3 5। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 7 तक जा सकते हैं 3 बिट में, है ना। मैक्सिमम 0 to 7 जा सकता है। 0 3 5 ऑलरेडी है, तो कॉम्प्लीमेंट लेके क्या बचेगा, 1 2 4 6, है ना। f का कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 4 6, राइट। अब अगर मैं इसका सोप बनाऊं, सॉरी पोस्ट मैम बनाऊं, 7 भी तो आएगा। तो वो इक्वल, बताओ। मैम 7 भी तो आना चाहिए, 1 2 4 6 7। हाँ बिल्कुल 7 भी आएगा, राइट। वन टू फोर सिक्स सेवन, ठीक है। इसका तो हमने सोप बनाया था। अगर मैं इसका पोस्ट बनाऊं, यानी f कॉम्प्लीमेंट का अगर हम पोस्ट बनाएं तो वो इक्वल होता है सोप के, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होता भी है कि नहीं, या सिर्फ बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पाई लिखेंगे हम अगर हम उसको पोस्ट बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे m लिखती अगर सोप बनाना होता, क्योंकि हमें पोस्ट बनाना है तो हम पाई लिखेंगे, ठीक है। तो f complement ABC is 1 2 4 6 7 and now I want to make a pose of this 1 2 4 6 7, ठीक है। चलो पोज देख लेते हैं, एग्जैक्टली यही बनाते हैं इसी तरह का गेम है। AB
एंड सी, उसमें भी आप रीऑर्डरिंग कर सकते हो, ए नीचे लिख सकते हो, बी सी ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। नंबरिंग वुड बी सेम, 0 1 2 3 4 6 7 4 5, ठीक है। तो ये सेम रहेगी, 0 1 2 3 6 7 4 एंड 5, ठीक है। अब 1 2 4 6 7 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था, वहां पे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं पोस्ट में। पोस्ट में हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 0, और 2 में 0, 4 में 0, 6 में 0, 7 में 0। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब आप इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगे? यहाँ पे एक्चुअली दिस सी वॉज सी बार एंड दिस वॉज सी। यहाँ पे दिस वॉज ए बार बी बार, है ना। 0 0 का मतलब था यहाँ पे ए बार बी बार। यहाँ पे 0 0 का मतलब है ए प्लस बी, ठीक है। और सी का मतलब है 0 अगर है, 0 इज सी एंड 1 इज सी बार, ठीक है। यहाँ पे इस वाले, अगर मैं इस वाले 0 की बात करूं तो इस वाले 0 का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट नेक्स्ट टर्म ये वाला 0 है, पर इस वाले 0 को हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम ग्रुप कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, ए ग्रुप ये वाला, ए ग्रुप ये वाला, और ए ग्रुप ये वाला, 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, यस ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है? दिस टर्म इज ये 0 और ये 0, कौन सा वाला 0, 2 वाला 0 और 6 वाला 0, 0 0, इनका क्या आएगा, सी प्लस, ऊपर से क्या प्लस हो रहा है, बी। बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी, राइट। अब इन दोनों 0 में से बताओ, 6 वाला 0 और 4 वाला 0, ये वाला टर्म कौन सा है, ए बार प्लस सी। ए बार प्लस सी, गुड, ठीक है। और ये लास्ट, ये फाइनल टर्म कौन सा है, ये वाला, ए बार प्लस बी बार। दिस इज योर पोस्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर सोप एक्सप्रेशन। जब आप इस पोस्ट को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस सोप एक्सप्रेशन, ठीक है। सो जो भी आपको फंक्शन दिया है सोप निकालने के लिए, उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, फिर जब आप उसका के मैप बना के फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज वो पोस्ट में बनाते हो उस के मैप को, ठीक है। तो उसके बाद जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आता है, दैट एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल सोप एक्सप्रेशन।
अब इस एक्सप्रेशन को आप लोग कॉपी और पेन लेके सॉल्व करके देखो कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन विद 4 पोस्ट वेरिएबल्स इक्वल है राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन के। ये सब ओपन अप करो, मल्टीप्लाई करो ये सारे टर्म्स आपस में, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। अब की में आपने Yes, किसी को ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? किसी को कंफ्यूजन है कोई अभी भी इसमें तो पूछ लो। ये था 3 वेरिएबल का, ठीक है। इसी तरह से 4 वेरिएबल का बनाना है। देखो यहाँ पे जो लिखा है 4 वेरिएबल थे, तो 4 वेरिएबल्स कहाँ तक जाएंगे, 2 to the power 4, है ना। तो यानी 16 वैल्यूज, यानी 0 to 15 बिट्स तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 15 के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0 to 15 में से वो सारे टर्म सब ट्रैक कर देंगे। तो 0 3 5 7 था, तो बचा यहाँ पे 1 2 4 अब टिल 15 जितने रिमेनिंग टर्म्स थे वो लिख दिए। तो इसका जो मिनिमम था यानी सोप था इक्वल होगा पोस्ट के ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। पोस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सोप ऑफ ओरिजिनल वन, ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। और जब इसका सोप बनाया तो ये आएगा, पोस्ट बनाया तो ये आएगा। अब इसकी ग्रुपिंग बताओ कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताओ क्या आया फटाफट मुझे। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताओ क्या आया। इसमें ग्रुपिंग करनी है। ड्रॉ दिस के मैप ऑन योर कॉपी एंड पेन, कॉपी पे ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ दिस के मैप ऑन योर कॉपी और फिर इसका फाइनल एक्सप्रेशन बताओ, कितने ग्रुप्स बनेंगे ये भी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड वाला करो पहले, फिर राइट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा? अच्छा, 4 4 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं इसमें? Ma'am, 4. 4 बन रहे हैं। 4 कैसे बन रहे हैं? Ma'am, 12, 13, 15, 14 must. गुड। 3, 7, 1 15, 11. 2 3 एंड 4, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो फाइनल इन चारों का क्या आएगा, इस वाले का क्या है बताओ। क्यू जी, Ma'am, ABC. क्यू जी प्लस इसका बताओ, ये जो 12 13 15 14 है, इसका आएगा ए बी प्लस इसका बताओ जो मिडिल वाला है। Ma'am, BG. बी जी, राइट। और सबसे नीचे वाला बताओ ये चारों का। AQ. प्लस ए क्यू, वेरी गुड। अब एक एक्सप्रेशन और रह गया ये वाला, है ना। इसकी तो किसी के साथ सर्कलिंग नहीं हो रही, तो प्लस इस वाले का और बताओ, इसका क्या आएगा? AB. G. ए बार बी बार Q bar. क्यू बार जी बार, है ना। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है ये सबको? यस मैम। मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अच्छा पोस्ट का बताओ, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 4 7 का, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं? 4 4 के कितने बन रहे हैं? Ma'am, 0. 0। 0 2 2 के कितने बन रहे हैं? 2. 2 3। 2 2 के 3 बन रहे हैं, एक ये वाला
एक ये वाला और एक ये वाला, 3 बन रहे हैं ना? मैम तो 4 बनेंगे। 4 बनेंगे बिल्कुल। बताओ अब जल्दी से इसका आउटपुट बताओ, इसका क्या है? अब तो फर्स्ट में तो मैम वो 9 के साथ हो जाएगा, तो 2 2 के 4 तो हो जाएगा। हाँ, ये वाला भी हो जाएगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2 2 के 4 बनेंगे, एक ये है और एक ये भी है ना? 2 2 के 4 बनेंगे, ठीक है ना? चलो इसका बताओ क्या आएगा? जी प्लस जी प्लस ए प्लस बी बार, है ना? डॉट, ठीक है। इसका बताओ सेकंड वाले का। हम्म बताओ भाई। मैम ए बार प्लस बी प्लस क्यू। क्यू प्लस ए बार प्लस बी, है ना? यस मैम। ठीक है। इसका बताओ थर्ड वाले का। प्लस डॉट डॉट, थर्ड एक्सप्रेशन इज अब बी प्लस सी प्लस जी बार। बी प्लस बी प्लस बी प्लस जी, सॉरी, क्यू, जी बार मैम। क्यू बी प्लस प्लस जी क्यू बार, प्लस जी बार। जी बार, गुड। और लास्ट वाला बताओ डॉट, फोर्थ एक्सप्रेशन ये वाला है ना? तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब ए प्लस क्यू बार प्लस जी। ए प्लस क्यू बार प्लस जी। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और देखो ये लेफ्ट एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। चलो सब लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे इसको और मुझे बताएंगे कि आ रहा है कि नहीं। कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है इसको? कोई सॉल्व नहीं कर रहा? ठीक है, तो अब आप खुद से ट्राई करना है इसको, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है रीऑर्डर्ड वाला, इसमें क्यू जी ऊपर कर दिया, बी ए नीचे कर दिया, ठीक है। अब फाइनल एक देख लेते हैं जिसमें हम डी वाला जो एग्जाम में आया था, डोंट केयर वाला। अच्छा, डोंट केयर कंडीशन क्या होती है कि अगर आप डोंट केयर को यूज करके, ठीक है, बड़ा ग्रुप कोई बना सकते हैं, जैसे कि 8 का ग्रुप, 16 का ग्रुप या 4 का या 2 का। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 16 से। 16 का ग्रुप अगर डोंट केयर को यूज करके बन रहा है तो हम बना लेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप डोंट केयर को सर्कल करोगे ही करोगे, ठीक है। एक ही के मैप में आपको लिखना होता है डोंट केयर भी और आपके एक्सप्रेशंस भी। आपके 1 3 4 7 11 आपने लिख दिया, 1 3 4 7 11, ठीक है। 1 3 7 4 11 सब लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे डी लिखा, 5 12 13 14 15, तो 5 भी लिखा, 12 भी लिखा, 13 लिखा, सब उसी में लिखा, ठीक है, सेम के मैप में। अब डी आप वहां पे यूज करोगे जहां पे आपका 4 4 के ग्रुप्स में वो यूज हो पा रहा है, ठीक है। अगर वो यूज नहीं हो रहा तो आपको अकेले उसको सर्कल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका डी यहाँ पे होता, डी यहाँ पे होता, ठीक है, तो आप इसे सर्कल नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वन आपने ऑलरेडी यहाँ सर्कल कर दिया है, तो डी के लिए आपको एक नई सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डी यहाँ पे भी होता और यहाँ पे भी होता, ठीक है, तो आप इसे कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि वन तो आपका ऑलरेडी इसमें कवर हो गया, और ये दोनों वंस आप, पॉइंट इज कि जहाँ पे आपके मैक्सिमम की ग्रुपिंग होके डी आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। जो 1 1 वाले एक्सप्रेशन है वो बहुत बड़ा बनेगा अगर आप उसको डी को यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो उस तरह का कुछ है तो आप जरूर उसको डी को यूज कर सकते हो, डोंट केयर को, ठीक है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू इंक्लूड इट इन योर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है डोंट केयर वाला, क्लियर है सबको? इसी तरह जो पाई वाला होगा उसमें आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे और फिर बाकी रिमेनिंग पोजीशंस पे डोंट केयर एज इट इज लगाओगे। अब इसमें देखो ये वाला डोंट केयर इन्होंने सर्कल नहीं किया, ये वाला डोंट केयर, ये वाला डोंट केयर इसके साथ है ना, सर्कल नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि डोंट केयर को सर्कल करने की नीड नहीं है, बस डोंट केयर को आप इसलिए यूज कर सकते हो अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, अपना ग्रुप बड़ा बनाने के लिए बस, ठीक है। क्लियर है सबको? ऐसे ही खाली डोंट केयर ये वाला जो था, ये हम इसको ग्रुप कर सकते थे पर नहीं किया क्योंकि ऑल डोंट केयर्स आर देयर, डोंट केयर की ग्रुपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट सबको? यस मैम। ओके, ठीक है, आई थिंक लेट्स एंड दिस मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को? दैट विल ऑल्सो बी रिविजन क्लास।